हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ योर फेवरेट शो, जहां पे हम बात करते हैं बहुत सारे गैजेट्स की, एंड दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। और आज इस एपिसोड में हम हर बार की तरह कुछ नए नए इंटरेस्टिंग गैजेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स फिगर आउट कि व्हाट्स हैपनिंग इन द फील्ड ऑफ these all nice new gadgets all around us. My name is Gaurav. You are watching Gadgets 360 with Technical Guruji. तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Now guys, you know the drill. It's very easy and very simple. And the reason we have to do it is just because कि gadgets की दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ती जाती है. Every day there's something new coming in. So it's time now that we just rewind a bit, गो बैक और पता लगाएं कि पिछले पूरे हफ्ते में क्या कुछ नया हुआ इन द फील्ड ऑफ गैजेट्स इन दिस सेगमेंट न्यूज ऑफ द वीक। इलॉन मस्क के ब्रेन टेक स्टार्टअप न्यूरालिंक ने अपने फर्स्ट ह्यूमन सब्जेक्ट पे सक्सेसफुल ब्रेन इम्प्लांट्स कर दिए हैं, thereby inching closer to their goal of letting humans control computer and similar smart devices wirelessly through our brains. Motorola's budget offering G24 Power is here. ये एक 6.56 इंच स्क्रीन एंड MediaTek Helio G85 पावर डिवाइस है जिसमें स्टोरेज एंड रैम के दो ऑप्शंस हैं. It gets two rather huge looking camera units on the back, the main being a 50 megapixel wide angle lens and the second is a macro. The 6000 mAh battery supports 30 watts charging. Porsche is having a good time in India क्योंकि Porsche India reported sales of 914 new Porsches being sold in 2023. ये 2022 के कंपैरिजन से 17% ज्यादा है. ये सिर्फ HNI इंडियंस की परचेस पावर ही नहीं दिखाता है. 113 यूनिट्स being sold of the Taycan दिखाता है the growing love for EVs in India and 65 deliveries of the 911 दिखाता है continued interest for performance by enthusiasts. For his new film Lal Salam, जिसके लीड में रजनीकांत हैं, A.R. Rahman has used AI to recreate the voice of two singers, late Bamba Bakya and late Shahul Hamid. On one hand, people have been calling this out as a violation of the deceased and art, but to many, hearing these two greats come alive and sing again was joy. Realme's newly launched 12 Pro is a 6.7-inch 120Hz screen running on a Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8GB RAM and up to 256GB of storage. एक 5000 mAh की बैटरी जो सपोर्ट करती है 67 watts of Super Whoop charging and 3 कैमरास बैक में इस फोन को पूरा करते हैं. The Realme 12 Pro Plus is the same display but a Snapdragon 7S Gen 2, up to 12GB of RAM, up to 256 of storage. Same 5000 mAh की बैटरी and 67 watts Super Whoop चार्जिंग का सपोर्ट भी है, but बैक कैमरा सिस्टम is upgraded from the 12 Pro. Now guys, for the big story of the week, I have this. Now this phone is very special. ये OnePlus का flagship phone नहीं है, but the reason I have put it as the top story is because this is no less of a flagship. You know, OnePlus ने OnePlus 12 सीरीज को जब लॉन्च किया तो OnePlus 12 got all the hype, all the Hasselblad cameras, the best of the best specifications, but this in my eyes is a phone which deserves a lot. ये है OnePlus 12R. Now this would be the phone जहाँ पे हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस में एक काफी अच्छा पैकेज मिल रहा है of all nice specs coming together. We have the Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. हमारे पास में 5500 mAh की एक बहुत ही बड़ी बैटरी है supporting 100 watts of fast charging. We have a super bright screen जहाँ पे it goes as bright as 4500 nits. We have a nice triple rear cameras, a complete clean Oxygen OS and priced very aggressively starting at 39,999 rupees. तो एक बार देखते हैं इन डिटेल that what exactly is this OnePlus 12R all about. अगर OnePlus 12 लॉन्च नहीं होता तो the OnePlus 12R ही फ्लैगशिप होता. इस बजट फ्लैगशिप फोन में भी वो डिस्प्ले है जो अपने 4500 निट्स के पीक ब्राइटनेस नंबर से सबको इंप्रेस कर रहा है. ऑन हाई ब्राइटनेस मोड HBM
it is 1600 nits. With support for HDR10+, HDR Vivid and Dolby Vision, ये 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले Corning Gorilla Glass Victus 2 से प्रोटेक्टेड है एंड रिफ्रेशेस डायनेमिकली एट 1 to 120 Hz. डिफरेंसेस स्टार्ट होते हैं विद द प्रोसेसर. OnePlus 12R gets a Snapdragon 8 Gen 2 chipset. It is old news, but in no way is it a bad chip or poor performer even for 2024 context. इसको पेयर कीजिए with up to 16 GB of LPDDR5X RAM, dedicated cooling mechanisms and it is a fast phone. OnePlus ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी 5500 mAh की बैटरी भी OnePlus 12R में फिट करी है एंड OnePlus ये भी क्लेम करता है कि ये बैटरी 4 साल तक अपनी पीक बैटरी कैपेसिटी को रिटेन करेगी. Sony's 50 मेगापिक्सल IMX890 is the main camera and the IMX355 is the ultra wide camera. Plus, there is a macro lens. इस पूरी शिप का कैप्टन है OxygenOS 14, which keeps things running smooth and tidy, while offering ample customizations ताकि आपका फोन आपकी अपनी choices का reflection लगे. So that's all about this OnePlus's new 12R smartphone. वैसे जब हम smartphones की बात करते हैं guys, तो one thing might come कि I mean these phones mostly look the same. सामने से आपको एक स्क्रीन मिलता है जहां पे कैमरा लगा होता है, पीछे कुछ कैमरास हैं, लुक्स लाइक अ ग्लास स्लैब एंड दैट्स अबाउट इट. अब वैसे यही चीज समटाइम्स इज ट्रू फॉर द कार्स एज वेल. और कार्स की अगर हम बात कर रहे हैं, आई विल टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. अगर मैं आपसे बात करता हूं Volkswagen की, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आएगी शायद एक छोटी सी क्यूट सी कार पोलो, जो हमने इंडिया में देखी. वैसे बीटल एक बहुत आइकॉनिक कार है, कमिंग फ्रॉम द सेम ग्रुप एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्स ग्लोबली. बट हाउ अबाउट मैं आपको बताऊं दैट दिस नाइस क्यूट पोलो एंड बुगाटी हैव अ कॉमन लिंक. और वैसे कॉमन लिंक ये है दैट द Volkswagen Group is one of the largest groups globally in terms of all these vehicles around us. Audi, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley, बाइक्स की बात करते हैं तो दुकाटी, और अभी बस कुछ टाइम पहले ही वो भी एक ब्रांच आउट हो गया है. अदरवाइज बुगाटी भी इस ग्रुप का ही हिस्सा था. अब आप सोच के देखो दैट ऑल दीज कार्स दे लुक डिफरेंट, दे बिहेव डिफरेंटली, बट बैकबोन में देयर इज जस्ट वन कॉमन ग्रुप व्हिच इज द Volkswagen Group. और मजे की बात, sometimes these cars also share lots of technology. मतलब ब्रांड्स वैसे डिफरेंटली एकदम यूनिकली ऑपरेट करते हैं. बट फॉर एग्जांपल जो Audi की A4 है, वही Volkswagen की Passat, आपको पता है कार हुआ करती थी, दे आर वेरी कॉमन. अगर हम बात करते हैं Lamborghini की Urus, वेरी लाइक अ सुपर SUV. और अगर हम बात करें Audi की Q8, दोनों में बहुत चीजें कॉमन है. So sometimes they share a few things, sometimes they behave very uniquely. Same हम बात कर सकते हैं स्मार्टफोन्स के बारे में. Sometimes brands they share a lot. कभी-कभी नाम अलग होता है, कभी-कभी दिखता अलग है फोन, but behind the scenes, sometimes brands do work very closely. क्या आपको ये फैक्ट पता था? अगर था तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो लेट मी नो बाय राइटिंग एट tg@ndtv.com. और मैं आप सभी के ईमेल्स को पढ़ने वाला हूं, ब्रेक पे जाने वाला हूं और ब्रेक से बाद आके आपको बताने वाला हूं और एक इंटरेस्टिंग गैजेट के बारे में. Hello guys, welcome back after break to your favorite show Gadget 360 with Technical Guruji. और ब्रेक के बाद आपको बताने वाला था मैं कुछ और इंटरेस्टिंग गैजेट के बारे में. एंड बाय द वे, दिस इज द वन. जी हाँ, मैंने पहन रखा है. दिस इज द गैजेट स्ट्रेट फ्रॉम द फ्यूचर. क्योंकि ये जो मैंने पहने हैं, ये कोई नॉर्मल ग्लासेस नहीं है. दीज आर स्मार्ट ग्लासेस जो कि आते हैं Ray-Ban और मेटा के कोलैबोरेशन के बाद. दिखने में आपको लगता होगा कि दिस इज लाइक अ नॉर्मल स्टैंडर्ड पेयर ऑफ ग्लासेस जो कि आपको मिल जाएंगे मार्केट पे. बट फॉर अ फैक्ट जब मैं इनको पहन लेता हूं तो आई पोजेस सम सुपर नेचुरल पावर्स नाउ. बिकॉज मैं अपने गाने सुन सकता हूं, आई कैन टॉक टू माई फ्रेंड्स ओवर कॉल्स सीधा इन ग्लासेस को पहनने का, बिकॉज दे हैव गॉट मल्टीपल माइक्रोफोन्स एंड अ वेरी नाइस स्पीकर सिस्टम.
फॉर अ फैक्ट मैं यहाँ पे इससे बात करते करते कुछ सवाल जवाब कर सकता हूँ, आस्किंग अबाउट वेदर और मे बी डायल अ नंबर, मे बी आस्क व्हाट इज द टाइम। एंड यहाँ पे जो इधर कैमरा लगा है मैं इससे फोटोज और वीडियोस को रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ। सो एवरीथिंग पुट टुगेदर इन दिस very sleek form factor is what we have in form of Ray-Ban and Meta smart glasses. आप एक बार देखिए इनको ध्यान से to know more about these very uniquely styled and very uniquely designed, I would say, containing a lot of tech जो इन स्मार्टफोन्स में है। See up close what they are all about. इनका फॉर्म फैक्टर इनका सबसे बड़ा फीचर है। द फैक्ट दैट दूर से देखने पे नहीं पता चलता है कि आपने स्मार्ट ग्लासेस पहन रखे हैं, वो भी वन विद अ कैमरा इंस्टॉल्ड, ये इनका सबसे बड़ा फीचर है। Ray-Ban एंड मेटा की पार्टनरशिप इज इन इट्स नेक्स्ट जनरेशन एंड व्हाइल द वेफेयर डिजाइन कंटिन्यूज, एक नया हेडलाइनर डिजाइन भी लॉन्च हुआ है एंड दीज ग्लासेस हैव गॉटन बेटर इक्विप्ड एंड बेटर ओवरऑल। नाउ अकॉर्डिंग टू Ray-Ban, इन ग्लासेस के स्पीकर्स न्यूली डिजाइंड हैं एंड सो दे ऑफर इंप्रूव्ड डायरेक्शनल ऑडियो लीकेज कम है कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, एंड ग्लासेस में इंस्टॉल्ड 5 माइक्रोफोन्स साउंड रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस ऑफ द वेयरर। Ray-Ban's claims of 50% more sound and 2x bass could be true. They do sound louder and they do have deeper bass. The 12-megapixel ultra-wide camera is paired to voice commands like send a photo, जिसके बोलते ही glasses automatically एक फोटो क्लिक कर लेंगे and share कर देंगे to your friends and family. This is part of the Meta AI integration. In the future आप Hey Meta बोल के इन glasses के साथ interact कर सकते हैं, which means all the social powers of Meta AI on your eyes. Because of higher compute demands, अब इन्हें Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 प्लेटफॉर्म पावर करता है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये ग्लासेस स्मार्ट ग्लासेस होने के बाद भी ग्लासेस बनना नहीं भूले हैं। अब ये IPX4 वाटर रेजिस्टेंट हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेंस कंपैटिबल हैं एंड अपने केस के थ्रू 8 एडिशनल चार्जेस से भी कंपैटिबल हैं। चश्मा तो आपने देख लिया है और चश्मा बहुत कुछ देख सकता है, बट उन चीजों का क्या जो हमारी आंखों से देखते हैं, बट समटाइम्स इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एनालाइज। और मेरे साथ ये बहुत बार होता है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द लेबल्स दैट वी हैव ऑन दीज क्लोथ्स। किसकी ड्राई क्लीन करनी है, किसको ड्राई क्लीन बिल्कुल नहीं करना है, किसको गर्म पानी से धोना है, एंड अ क्लॉथ दैट माइट नीड अ वेरी सर्टेन टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हाइल वॉशिंग। अब ये सब चीजों को आसान बनाने के लिए आई विल गिव यू अ वेरी नाइस टिप। इफ यू हैव एन आईफोन, iPhones are getting very smart day by day, और आपको केवल वो जो लेबल आपकी टी शर्ट या जैकेट पे है उसकी एक फोटो खींचनी है। गो इनटू योर गैलरी और वहां पे जब आप उस फोटो पे स्वाइप अप करेंगे तो नीचे यू विल गेट अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट लेबल, कि आखिर वो जो क्रिप्टिक भाषा में कुछ सिंबल्स बने हैं उनका मतलब क्या है, व्हाट डू दे रियली मीन, कि आप उस पे आयरन करेंगे या उसको धूप में सुखाएंगे या बड़े ध्यान से उसको समेट कर रखेंगे। व्हाट एग्जैक्टली दैट लेबल मीन्स, योर आईफोन इफ इट्स रनिंग ऑन द लेटेस्ट iOS 17 इज स्मार्ट इनफ टू टेल यू। ये टिप यूज भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और थोड़ा सा कूल महसूस कीजिए, बिकॉज नाउ यू नो वन एक्स्ट्रा फैक्ट, वन एक्स्ट्रा थिंग दैट योर आईफोन कैन डू इट। Okay, so here we are guys and this is my favorite section. शो के एंड में आता है लेकिन मजा बहुत ज्यादा अपने साथ लेके आता है, and it's time now to answer all your questions जो भी आपने पूछे थे। Let's see क्या questions हैं और मेरी तरफ से आपको उनके क्या जवाब मिलते हैं। Hello TG, I watch all your shows. Can you please help me decide which TV to buy? I'm confused between different operating systems. Okay, so talking about smart TVs, you definitely have multiple options. LG is using their own OS, Samsung is using their own OS. Then you have so many Android TVs in the market. So my answer would be that you can't go wrong among these 3 options. फिर चाहे आप एक एंड्रॉयड टीवी लें, चाहे आप एक सैमसंग का टीवी लेते हैं विद देयर ओन ओएस, या आप एक एलजी का टीवी लेते हैं विद देयर ओन वर्जन ऑफ ओएस, मोर और लेस ऑल दीज 3 दे आर रियली केपेबल एंड दे आर रियली स्मार्ट फॉर यू टू एंजॉय योर टेलीविजन। हाय टेक्निकल गुरुजी, आपने आपका एक शो में माइक्रो लेंस के बारे में बताया था, क्या आप मुझे उसके बारे में और थोड़ा जानकारी दे सकते हैं? Yeah, I mean, why not? See, every lens has a unique property basis of its design.
कि वो कैसा डिज़ाइन किया गया है, उसका क्लोजेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस क्या है, वो कितनी लाइट को कैमरा सेंसर तक पहुंचाएगा. इट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कम अलोंग विद ईच लेंस. टॉकिंग अबाउट अ मैक्रो लेंस वुड बी अ लेंस जहां पे जो क्लोजेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है. मीनिंग इफ दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर लेंस, यू कैन ब्रिंग इट वेरी क्लोज टू सब्जेक्ट और वो उस टाइम पे भी शार्प फोकस कर सकता है, गिविंग यू सम नाइस क्लोजअप मैक्रो शॉट्स. तो स्मार्टफोन्स यूटिलाइज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. कुछ केसेस में द अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस हैज ऑटो फोकस, मीनिंग कि वो एकदम पास में आने के बाद भी फोकस कर सकता है एंड यू गेट अ नाइस मैक्रो शॉट. इन सम केसेस दे हैव अ डेडिकेटेड कैमरा. Usually it's of a low megapixel count, let's say 2 megapixels or 5 megapixels, but उसका जो main काम है वो macro shots के लिए होता है. And sometimes you can have a clip-on attachment जिससे you can make any lens a macro lens because आप एक extra glass को add करते हो उसके साथ. Hi Technical Guruji, Bluetooth 5 और 5.2 में क्या फ़र्क है? This is Ananya Das. Okay, so while we compare these different iterations of Bluetooth, you just need to understand that जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, for example Bluetooth 5.3 भी अभी आ चुका है, तो मतलब अगर आप ये देखेंगे, so you will get a stable connection, you will get a power efficient connection, और जो आपकी connection बना है between let's say your earphones and your smartphone or maybe your smart watch and your smartphone, वो काफ़ी एक stable, एक reliable connection establish कर पाते हैं. That's the only difference. तो पावर आपकी कम कंज्यूम होगी, आपको एक स्टेबल कनेक्शन मिलेगा. जो आप अगर गाने सुन रहे हैं तो समटाइम्स द ट्रांसमिशन इज एट अ हायर बिट रेट फॉर यू टू एंजॉय हाई रेज म्यूजिक फॉर एग्जांपल. तो ये डिफरेंसेस आते हैं जैसे जैसे हम ब्लूटूथ की जो अलग अलग वर्जन्स हैं उसमें आगे बढ़ते रहते हैं. Hi Tizi, what are smart shoes? How does it work? This is Bonos Sibura. Oh, smart shoes. It's a wide topic to be honest because smart shoes अलग अलग सिनेरियोज में हम देख सकते हैं, तो अलग अलग तरीके से हमको मिल सकते हैं. मे बी शूज विद अ बिल्ट इन पेडोमीटर जो आपके स्टेप्स काउंट कर ले, would be a smart shoe. Shoes with different RGB lights जिनको हम on the fly change कर सकते हैं would be a smart shoe. Shoes with built-in speakers while you run, आपको गाने की आवाज आ रही है, that would be a smart shoe. और maybe shoes with built-in wheels, built-in skates, वो भी smart shoes होंगे. So different brands trying different things right now. Let's see future में क्या चीज mainstream पे जाती है and what exactly do we call as a smart shoe. So guys, that's all that I have from this week's Gadget 360 with Technical Guruji. हमने OnePlus 12R से लेके Meta वाले स्मार्ट ग्लासेस सबके बारे में जान लिया और फिर हमने Audi A4 और Volkswagen Passat से आगे आते आते वो कपड़े का लेवल भी चेक कर लिया. वैसे आपकी तरफ से अगर कुछ और है कहने को, you know the address, it's very easy, it's tg@ntv.com. Write in whatever you have, आपके जो भी मन के सवाल हैं. If you want to appreciate, if you want to write whatever about gadgets, आप लिख डालिए अपने सारी मन की बातें and I'll make sure that me and my team will have a closer look at that email inbox. और मैं आपको मिलने वाला हूँ next week with some amazing gadgets coming your way. बहुत मजा आने वाला है. See you next week. Have a good day.